Hello students, today in this video we are going to study about the test of divisibility. So let's start. In order to find whether or not a number is divisible by another number, we perform actual division and see whether the remainder is zero or not. यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम चेक करते हैं कि वो सर्टेन नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें एक्चुअल डिवीज़न परफॉर्म करना पड़ता है और हम चेक करते हैं कि रिमाइंडर ज़ीरो है या नहीं है. अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो गिवन नंबर किसी सर्टेन नंबर से डिविजिबल होता है, बट अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है तो वो डिविजिबल नहीं होता है. बट दिस मेथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग. Therefore, the test of divisibility explains whether or not the given number is divisible by the other number without actual division. हाँ, बिना डिवीज़न के हम चेक कर सकते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं सर्टेन नंबर से. Some interesting facts is also given and इसको हम बाद में देखेंगे. पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लेते हैं. Let us see whether we can find a pattern that can tell us whether a number is divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 or 12 through the following table. First, 2. What is the condition? A number is divisible by 2 if its rightmost digit, that means ones digit, is even or zero. Okay, so let's see an example. If a number is given 1442, 1442, so we will check the ones place of this number, the ones place or the rightmost digit, that is this one. Okay, it is even or zero, then it is divisible by 2. So the ones place of this number is 2 and 2 is divisible by 2 and 2 is also an even number. That is why the number 1442 is also divisible by 2. So किसी भी नंबर को अगर चेक करना हो कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके वंस प्लेस को हम देखते हैं. वंस प्लेस अगर इवन है या ज़ीरो है या 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा. तो इसके लिए क्या कंडीशन है? Ones place should be even or zero, or it should be divisible by 2. So this is the divisibility test for number 2. Next, 3. A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. यानी कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? जब उसके सारे डिजिट को हम ऐड करेंगे और जो सम आएगा वो भी 3 से डिविजिबल हो, तभी गिवन नंबर 3 से डिविजिबल है. लेट्स चेक दिस विथ एग्जांपल. सो हम नंबर ले लेते हैं 6708, दैट इज 6708. अब इसमें जितने भी डिजिट्स हैं 6, 7, 0 और 8, इसे हम सम करेंगे, ऐड करेंगे. दैट इज 21. अब हम चेक करेंगे जो सम है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं. 7 टाइम्स में डिविजिबल है, 3 7 जा 21. तो अगर किसी भी नंबर का
किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अब चेक कर लेते हैं। यस, रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स 6708 इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट, number 4. A number is divisible by 4 if the number formed by the two rightmost digits, that is ones and tens, is a multiple of 4 or divisible by 4. Let's check with an example. We will take 9520. So we will check for the two rightmost digit, that is 2 and 0, or the ones place and tens place, that is 20. If 20 is divisible by 4, then the number is divisible by 4. So yes, 20 is divisible, 4 5s are 20. So the number is also divisible. We will check it now. Yes, the remainder is 0, so the number 9520 is divisible by 4. Next, number 5. A number is divisible by 5 if the digit at its ones place is either 5 or 0. So let's take an example, 7525. 7525. So we have to check for the rightmost digit or the ones place. Yes, the ones place is 5. Then the whole number is divisible by 5. So the ones place should be 5 or 0. So we will check. It is 7525. The remainder is 0. So yes, the number 7525 is divisible by 5. Next, divisibility test of 6. A number is divisible by 6 if the number is even and sum of its digits is divisible by 2. So if we have to check that a certain number is divisible by 6 or not, then we have to check that the number is divisible by 2 and 3. Okay, so here is a remark also. A number divisible by 6 is also divisible by 2 and 3. So कोई भी नंबर जो 6 से डिविजिबल होता है वो 2 से और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर हमें 6 से चेक करना है तो पहले हम चेक करेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं और 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, बट अगर 3 से और 2 से दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट 7. A number is divisible by 7 if the difference between twice the last digit and the number formed by other digits is either 0 or a multiple of 7. तो यहाँ पे लास्ट डिजिट का मतलब है the ones place digit. ओके, सो वंस प्लेस डिजिट को हम ट्वाइस करेंगे यानी कि 2 टाइम्स करेंगे और बाकी सारे डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है उससे हम माइनस करेंगे। तो जो नंबर आएगा हमारे पास में वो अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं। सपोज हम नंबर लेते हैं 2975। 2975. So the ones place digit is 5. So we will double it. 5 into 2, that is 10, and the number found by other digits are
297. So we will find the difference between these two. 297 minus 10, यानी कि कौन दो नंबर के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है? जो वंस प्लेस में है उसका हमने डबल किया और बाकी डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है उससे हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 287. अब हम चेक करेंगे कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है. So 287 divided by 7. The remainder is 0. So yes, the number 287 is divisible by 7. So the number 2975 is also divisible by 7. Let's check. The number 2975 is divisible by 7. Next, 8. A number is divisible by 8 if the number formed by its rightmost 3 digits or the number formed by ones, tens and hundreds place is divisible by 8. That means अगर किसी भी नंबर का वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा. एंड हेयर इज ऑल्सो अ रिमार्क, अ नंबर डिविजिबल बाय 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 4. तो चेक करते हैं. एक नंबर हम लेते हैं 987048. 987048. So the rightmost 3 digit or the number formed by ones, tens and hundred place. So what is the number? The number is 048. 048. That means only 48. We will check if 48 is divisible by 8 or not. So yes, 48 is divisible. 8 into 6, that is 48. So yes, 48 is divisible. So the number is also divisible by 8. So let's check. Yes, the remainder is 0. So the number 9,87,048 is divisible by 8. Next, divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9. तो यहाँ पे भी सेम रूल है 3 के तरह. अगर किसी भी नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा. एंड हेयर इज अ रिमार्क, अ नंबर डिविजिबल बाय 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होगा. बट जो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल हो वो 9 से भी डिविजिबल हो. एज फॉर एग्जाम्पल, okay, I will show you with example. Let's take small numbers. Suppose 27. So the sum of its digit is 9. So 9 is divisible by 3 and 9 also. So 27 is divisible by 9 and 3. तो 27 दोनों से ही divisible है, 9 से भी और 3 से भी. Let's take another number 30. So the sum of its digit is 3. So this number is only divisible by 3, not 9. So 30 is divisible by 3, not 9. Okay. Next, number 10. A number is divisible by 10 if the rightmost digit, that is the digit at ones place, is 0. So किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड होने के लिए उसके वंस प्लेस में 0 होना ज़रूरी है, तभी वो 10 से डिवाइड होगा.
एंड यहाँ भी एक रिमार्क है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5. Next, number 11. A number is divisible by 11 if the difference between the sums of alternate digits is either 0 or a multiple of 11. तो यहाँ पे alternate digits का मतलब है odd places में जो digit है and even places में जो digit है उनका difference हम निकालेंगे, और अगर उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल है या फिर 0 है तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा. ओके, चेक करते हैं एक एग्जांपल से. सो लेट्स टेक 1086294. सो द नंबर इज 1086294. तो इसमें अल्टरनेट डिजिट का मीनिंग है, मतलब जो डिजिट ऑड प्लेसेस पे है और इवन प्लेसेस पे है उन्हें हम अलग करेंगे और उनके सम का डिफरेंस निकालेंगे. ओके, देख लीजिए. तो नंबर 4 ये वंस प्लेस पे है यानी कि ये ऑड प्लेस पे है. 9 इवन प्लेस, 2 ऑड प्लेस, 6 इवन प्लेस, 8 ऑड प्लेस, 0 इवन प्लेस एंड 1 ऑड प्लेस. तो ऑड प्लेसेस में कौन कौन से डिजिट है उनका सम निकाल लेते हैं. 4 + 2 + 8 + 1 दैट इज 15. अब इवन प्लेस का चेक करते हैं, दैट इज 9 + 6 + 0 दैट इज ऑल्सो 15. अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे. 15 - 15 दैट इज 0. तो 0 है या फिर कोई ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है. तो यहाँ पे भी 0 है तो 10,86,294 भी 11 से डिविजिबल है. चेक कर लेते हैं. So the remainder is 0. So yes, this number is divisible by 11. So next, 12. A number is divisible by 12 if the given number is exactly divisible by 3 and 4. क्यों? क्योंकि 3 और 4 जो है 12 का फैक्टर है. सो कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल होगा तो वो 3 और 4 से भी डिविजिबल होगा. अगर किसी एक से भी, जैसे अगर 3 से है 4 से नहीं है तो वो 12 से नहीं होगा. बट अगर 3 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है तो वह 12 से भी डिविजिबल होगा. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो एग्जाम्पल में 1200 लिया है पहले. 1200 3 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है. सो 1200 इज डिविजिबल बाय 12. ओके, एक और एग्जाम्पल है, आप खुद से देख सकते हैं. अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं. सो 1. If a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. That means, okay, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो जो दूसरा नंबर है ना उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. Second, if a number is divisible by the two co-prime numbers, then it is divisible by their product also. यानी कि कोई नंबर अगर किसी दो को-प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वह उस दोनों को-प्राइम नंबर के प्रोडक्ट यानी कि उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उससे भी डिविजिबल होगा. एंड थर्ड, इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर. इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर यानी कि कोई दो नंबर अगर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो जो दो नंबर है उनको हम ऐड कर देंगे वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा. And number 4, if two given numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by that number. यानी कि कोई दो नंबर अगर किसी एक सर्टेन नंबर से डिविजिबल है तो जो दो नंबर डिविजिबल है उनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो
वो भी उस सर्टेन नंबर से डिविजिबल होगा। So that's all for today in this video, and in this video we studied the test of divisibility of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Thank you so much for watching this video.